ہیں یہ یقیناً اس سے بالکل مختلف ہے. وہ مزہ آپ کو نہیں ملے گا جو مزہ آپ کو عام طور پر ملتا ہے. اور تقریر کا جو معنی ہوتا ہے، تقریر واعظ کو کہتے ہیں نا، اور واعظ کے معنی پہ اگر غور کر لیں گے تو حقیقت میں اسی طرح کے جلسے تقریر پر صادق آتے ہیں. آج آپ کے سامنے جو اسٹیج پر علماء کرام تشریف فرما ہے، یہ سب ہمارے علاقائی علماء کرام ہیں، اور یہ سب ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے علمی کارنامے انجام دیے اور آگے بھی کر رہے ہیں. اپنے اپنے علاقے میں جو جہاں پہنچے وہاں پر علمی کارنامے انجام دیے. ابھی بیان ہوا کہ کس طریقے سے ہمارے حضرت قاری سعید اختر صاحب قبلہ تشریف فرما ہے. جو لوگ ممبئی جاتے ہیں یا جو لوگ وہاں رہے ہیں انہیں معلوم ہے کہ انہوں نے مخدومیہ کو کس پستی سے اٹھا کر کس بلندی تک پہنچایا. ہمارے بڑے بھائی کی طرح حضرت مولانا عبید الرحمان صاحب قبلہ ہیں. جو لوگ ان کو آپ سب ہم سے بہتر جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح تعلیمی ادارے قائم کیے ہیں، اور ایک عالم ہوتے ہوئے بھی انہوں نے گریجویشن ڈگری کالج تک کمپلیٹ کروائی. یہ کوئی چھوٹا کارنامہ ہے؟ یہ کوئی چھوٹی فکر کا آدمی کر سکتا ہے؟ یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کے اندر فکری پختگی ہے. یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کے اندر قوم کو تعلیم سے آراستہ کرنے کا بے لوث جذبہ پیدا. ہم نے دیکھا ہمارے ہی علاقے سے قاری ابو الحسن صاحب قبلہ، مولانا اقبال صاحب وغیرہ وارثیہ پہنچے. لکھنؤ میں دارالعلوم وارثیہ جیسا ادارہ قائم کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں کہ صرف دینی ادارہ قائم کر دیا ہو، بلکہ اس کے ساتھ بھی وارثیہ انٹر کالج کا قیام ان کی بھی فکری بلندی پر دلالت کرے. ہمارے ہاں قاری صاحب قبلہ اور مفتی عبدالوحید صاحب قبلہ کا دورہ جب لوٹے، انہوں نے ارادہ بنایا کہ اپنے علاقے میں کچھ کیا جائے. تو آپ کے سامنے جامعہ رضویہ گلشن برکات کی عمارت ہے، اور رضا انٹر کالج اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ آپ کو صرف دنیاوی تعلیم کی، دینی تعلیم کی فکر نہیں دی، بلکہ قوم کی تعلیم و ترقی کا راستہ وہ جانتے تھے کہ جتنا ضروری ہماری قوم کی تعلیم و ترقی کے لیے دینی تعلیم ہے، اتنا ہی ضروری دنیاوی تعلیم بھی ہے. اسی لیے انہوں نے رضا انٹر کالج کی تعلیم بھی رکھی. محترم سامعین کرام، یہ علماء کرام جو بیٹھے ہیں آج، یہ کوئی عام علماء نہیں ہے. یہ کوئی ایسے علماء نہیں ہے جن کو آپ سمجھے کہ بس ایسی ہیں. ان کے اندر وہ بلندیاں ہیں، وہ فکری بلندیاں ہیں. حضرت مولانا زاہد عبداللہ پوری صاحب، حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب وغیرہ، ان لوگوں نے اپنے اسکول قائم کر رہے. اداروں کے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑے کام کیے. ان کو فکر ہے تعلیم کی، ان کو فکر ہے قوم کی. یہ رات دن قوم کی فکر میں گھلے جاتے. آپ دیکھ رہے ہیں آج اسٹیج پہ کتنا مجمع ہے، کتنے لوگ ہیں، اور یہ کوئی نذرانے کے لیے آئے ہوئے لوگ نہیں ہیں. نہ ان کو کوئی نذرانہ ملے گا. یہ لوگ نذرانے کے لیے نہیں آئے. ان سے پہلے بتا دیا گیا تھا کہ یہ پروگرام جو ہے آپ کی فکر کو آگے بڑھانے کے لیے ہے. یہ پروگرام جو ہے وہ آپ کے درد کو قوم کے سامنے رکھنے کے لیے ہے. یہ پروگرام جو ہے وہ آپ کے خیالات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہے. یہ پروگرام جو ہے وہ قوم کی تعلیم و ترقی کے لیے ہے. اور یہ علماء کرام، یہی علماء کرام ہیں جن کو لوگ چھوٹی نظر سے دیکھا کرتے ہیں. یہ آج آپ کے لیے اپنا پیسہ خرچ کر کے، اپنا قیمتی وقت نکال کر کے رات میں آج یہاں موجود ہے. صبح یہ اپنے اپنے کلاس جوائن کر کے بچوں کو پڑھاتے ہوئے بھی نظر آئیں گے. آپ کے یہاں یہ صرف دینی جذبہ اور قوم کا درد ہے ان کے سینوں میں جو انہیں آج یہااں کھینچ کر لے کر گیا. یہ آپ کی ترقی چاہتے ہیں، یہ قوم مسلم کی ترقی چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے قوم کے بچے جاہل کے خطاب سے مخاطب نہ کیے جائیں، بلکہ ان کو عالم اور علم والے کی پہچان کے ساتھ جانا جائے. ان لوگوں نے بڑے تعلیمی کارنامے انجام دیے. جو جہاں پہنچے، وہ ایک کسی شاعر نے کہا ہے نا، جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے.
ये सब अपने अपने जगह नायाब है, लेकिन इन्होंने सोचा, इन सब ने 2018 में मीटिंग की कदौरा जामिया रज़िया गुलशन बरकात के अंदर, और ये तय किया, ये मुआहिदा किया, ये अहद किया कि हमने जहां गए हमने बड़े काम किए हैं। हम मुंबई गए हैं तो वहां हमने बड़े काम किए हैं, हम लखनऊ गए हैं तो हमने वहां बड़े काम किए हैं, हम फतेहपुर गए हैं तो हमने वहां बड़े काम किए हैं, बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं, बड़े बड़े इदारे खड़े कर दिए हैं। अब हम और आप सब मिल करके अपने इलाके में तालीमी बेदारी के लिए काम करेंगे, अपने इलाके के हर बच्चे तक इल्म की रोशनी फैलाएंगे। इसीलिए ये प्रोग्राम मुसलसल मुनक़्क़िद किया जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहरीके उलमाए बुंदेलखंड, तहरीके उलमाए बुंदेलखंड, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपको मालूम है इल्म की रोशनी कैसे फैलती? मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। मैं अभी आया जब यहाँ दोपहर में, मैं दोपहर से लोग अजीब अजीब सवाल कर रहे थे। कोई कह रहा था यहाँ शादी हो रही है क्या, कोई कह रहा था खाना हो रहा है क्या, कोई कुछ अजीब अजीब चीजें हो रही थी। और एक साहब ने कहा, यार आपके पोस्टर मैंने देखा, उसमें किसी पीर साहब का नाम नहीं था। मोहतरम साहब किराम, ये जरूरी नहीं है कि हर जलसे में हर किसी का नाम हो जाए। हम और आप, हम काम को तरजीह देने वाले, जो लोग बेलौस दिली जज्बा के साथ काम करते हैं, हम उनके साथ खड़े होने वाले लोग। हमारे यहाँ जो काम करेगा, आज हम लोग जो इल्म की दौलत से आरास्ता हैं, आपको मालूम है यहाँ कोने पर ये सैयद साहब तुल्ला तशरीफ फरमाए, सैयद रियाज साहब बागी, इनके वालिद साहब सैयद मजहर साहब, आप सब जानते होंगे। उन्होंने पता है हमारे गांव में मकतब चलाने के लिए कितनी मेहनत की। आप लोग अपने यहाँ मकतब नहीं चलाते, मकतब बंद कर दिए हैं आपने। दीन की असल तालीम जो होती है वो मकतब से होती है, और मकतब में हम सोचते हैं कि एक छोटा सा कोई हाफिज रख दें, कोई मौलवी रख दें और मकतब कामयाब हो जाएगा। नहीं होता, बल्कि मकतब की जरूरत तो ये है कि मकतब में जो सबसे बेहतरीन आलिम हो, जिसकी फिक्र सबसे बुलंद हो, जिसके अज़ाइम सबसे पुख्ता हो, ऐसा आदमी मकतब में रखा जाए, तब कौम में तरक्की किया करते हैं। हजरत सैयद मजहर मियां साहब तुगला ने, आपको मालूम है जब हम लोग पढ़े हैं जिस मकतब से हमारे गांव में आज तकरीबन 15-16 उलमाए किराम और पैदा हुए हैं, उस मकतब के लिए इनके वालिद साहब ने, सैयद मजहर अली साहब तुगला ने, कदौरा में डिब्बा लेकर के बाजार में सब्जी की दुकानों में घूमा। ऐसे नहीं इदारे चलते हैं। गांव का इदारा चलाने के लिए कदौरा की सब्जी की दुकानों का दौरा किया है, तब इतने उलमा पैदा हुए हैं। और आप लोगों के पास सब कुछ होते हुए, सारी फरावानी होते हुए, सारी आशाएं होते हुए, सैकड़ों रुपए लुटाने के बावजूद हमने देखा है यहीं पर कितने पैसे लुटाए जाते हैं, और आपके यहाँ मकतब ना चले, बड़े अफसोस की बात। क्या बात है, वाह वाह वाह। अगर मकतब ना चला सके, हम जलसों में 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए के कव्वाल को दे दें बुलाने के लिए, और हम एक इमाम ना रख सके मस्जिद में, कितने अफसोस की बात। अगर हम जितना एक कव्वाल को साल भर में देते हैं, अगर उतना पैसा इमाम के लिए निकाल दें, वो रात भर में जितना ले जाता है, उतना 10,000 रुपया महीना भी अगर देंगे किसी आलिम को, तो पूरे साल की उसकी तनख्वाह 1,20,000 होगी। और वो आपको बेहतरीन इल्म दीन भी सिखाएगा, और उसके साथ आपके बच्चों को दीन की तालीम से भी आरास्ता करेगा। तो आप एक रात का सौदा करना तो मंजूर करते हैं, लेकिन उतने ही पैसे के बदले में एक पूरे साल का सौदा नहीं करना चाहिए। मोहतरम सामीन, हम क्या कर रहे हैं? किसी शायर ने कहा था कि बन गए तिनके नशेमन के कफस की तीलियां, बन गया क्या, हम चले थे क्या बनाने के लिए? अरे हम तो दुनिया को इल्म की रोशनी देने के लिए आए थे, हम तो दुनिया को ये बताने के लिए आए थे कि तुम तालीम के जेवर से आरास्ता हो जाओ। हमारा कुरान जब नाजिल होता है तो लफ्ज़ इक़रा से नाजिल होता है। हमारे यहाँ कहावत मशहूर है कि उतलबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, माँ के गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। हमारा कुरान कहता है हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमून, क्या जानने वाले और ना जानने
वाले बराबर हो सकते हैं, उसके बावजूद हमारा हाल ये है कि इल्म में अगर कोई कौम सबसे पीछे है तो वो हमारी कौम। मोहतरम सामीन, गौर करें कि हम किस लिए दुनिया में भेजे गए थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो कुरान में इरशाद फरमाता है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के लिए जाहिर किए गए हो, तुम लोगों के लिए जाहिर किए गए हो, जिनको तुम भलाई का हुक्म दो, बुराई से रोको। अपने अंदर जरा झांक करके देखो कितना ये अंसुर पाया जाता है, कितनी तरक्की हमारे अंदर है तालीम में, कितना हमारा किरदार अच्छा है। क्या हम लोगों को सिखाएंगे? जुमा के दिन जुमा की नमाज के वक्त भी हमारे यहाँ जुआ के फल देखे जाते हैं। और आजकल तो नए नए जुआ के तरीके इजाद हो गए। मोबाइल पर क्रिकेट टीम बनाकर कहीं जुआ खेला जा रहा है, कहीं लूडो के जरिए जुआ खेला जा रहा है, कहीं किसी और तरीके से। लोग सोचते हैं ये नाजायज नहीं होगा, ये तो हम क्रिकेट टीम बना रहे हैं, वो इनाम मिल रहा है, ये भी जुआ है। ये इसीलिए आपको लगता है कि नाजायज नहीं होगा क्योंकि आपके पास इल्म नहीं है। अगर इल्म होता तो जानते कि ये भी जुआ है और ये भी उतना ही हराम है जितना ताश के पत्ते लेकर के ग्रुप बनाकर खेलना जितना हराम है, उतना ही हराम ये टीम बना करके जुआ खेलना है, उतना ही हराम ये लूडो में बैठ करके जुआ खेलना है या किसी और तरीके से जुआ। लेकिन हमारे यहाँ तो तालीम ही की कमी है ना, असल फुकदान तो यही है। हम सोचते हैं हमारे यहाँ गरजदार तकरीरें हों, बढ़िया लच्छेदार तकरीरें हों, अल्फाज की बारिश हो, एक के बाद एक दीगर जुमला निकलते रहें और नुक्ते के नाम पर कुछ भी सर्व किया जाता रहे, हम सुनते रहते हैं। मोहतरम सामीन, तकरीरों का मिजाज बदलिए, अपनी समातों का मिजाज बदलिए। हम और आप, आज लोग कह रहे थे, कुछ लोगों ने मुझसे ये भी कहा हजरत कि ये बेमौसम जलसा कैसा, हमें समझ में नहीं आ रहा है और ये नाम क्या है कहने लगे। ये बेमौसम जलसा कैसा? जलसे तो मुहर्रम में हुआ करते हैं, जलसे तो 12वीं शरीफ में हुआ करते हैं, जलसे तो रजब के महीने में होते हैं, ये बेमौसम जलसा कैसा है? मोहतरम सामीन किराम, ये मौसम के हिसाब से जो हमने जलसे किए हैं ना, इन्होंने हमें इल्मे दीन से दूर कर दिया है। क्योंकि जब हम मुहर्रम में जलसा करते हैं तो हम सिर्फ इमाम हुसैन के वही करबला के वाक़यात सुनते रहते हैं, वही मुकर्ररों की मनगढ़ंत बातें सुनते रहते हैं और वहाँ खेमे से निकल करके मैदान में जाने तक हर साल वही चीज सुनते रहते हैं, वही वाक़यात सुनते रहते हैं। हम जलसा जब 12वीं शरीफ में करते हैं तो हमारे मुकर्रर आते हैं और वो बंधे हुए होते हैं कि वो 12वीं शरीफ में आए हैं तो हुजूर की सीरत पर ही गुफ्तगू करेंगे, और वो हुजूर की सीरत पर भी गुफ्तगू नहीं करते बल्कि वही चंद मोजज़ात पर, 10-12 मोजज़ात पर अटके हुए हैं। पूरी सालों की तकरीरें उठा करके देख लीजिए, उनकी इसी मोजज़ात पर अटके हुए हैं। हम इसी तरीके से आगे बढ़े, जब बुजुर्गाने दीन के साथ प्रोग्राम करते हैं तो सिर्फ उन्हीं की बातें होती हैं और उनकी भी करामतों का तज़किरा होता है, उनकी जिंदगी के रोशन नुकूश की बात नहीं होती, उनके जिंदगी की बेहतरीन बातों की बात नहीं होती हमारे यहाँ। और हम जब लोगों ने कहा ना कि पीर का नाम नहीं है, कोई पीर नहीं है, तो मैं बताना चाहता हूँ, बड़ी जुर्रत के साथ कहना चाहता हूँ, मेरा किसी की तरफ कोई इशारा नहीं है, लेकिन जब पीरों के साथ जलसे होते हैं तो पूरे जलसे में सिर्फ पीर साहब की तारीफ होती है, लेकिन दीन का कोई पैगाम वहां नहीं पहुंचाया जाता। मोहतरम सामीन किराम, इसीलिए हम लोग अलग जलसा करते हैं, बिन मौसम जलसा करते हैं कि हमारे उलमाए किराम जो उनके दिल में है वो आपसे बता सके, जो दर्द अपने दिलों में छुपाए हुए हैं वो दर्द आपके सामने रख सके, कौम की तालीम की बात कर सके, कौम की तरक्की की बात कर सके। वो जलसे के उन्वान के साथ बंध ना जाए, वो जलसे के उन्वान के बोझ के नीचे दब ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, तहरीके उलमाए बुंदेलखंड, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, हमारे प्रोग्राम पूरे इलाके में होते हैं। हमारा 17वां प्रोग्राम है तहरीक की बुनियाद के बाद से, और हमारे प्रोग्राम सिर्फ तालीमी बेदारी पर होते हैं। हमारी कोशिश ये होती है, हमारी जो वर्कशॉप होती हैं, जो लोग कदौरा में वर्कशॉप में ज्वाइन हुए थे कुछ लोग, वो जानते होंगे कि किस तरह की बातें हमारी वर्कशॉप में होती हैं, हमारी तालीमी कॉन्फ्रेंस जो होती है वो किस तरह की होती हैं। अगर हम यही जलसे आजाद कर लें, अपने जलसों को आजाद कर लें,
اور जलसे जब हम करते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, बड़ी बड़ी मोटी रकमें देकर के मुकर्रिर को बुलाते हैं, आप 1-2 महीना पहले से तारीखें लेते हैं, आप ये क्यों नहीं कर लेते? क्यों आपने महल्ले की जरूरत को समझे? जितने लोग जलसा करा रहे हैं कम से कम वही लोग बैठ करके तय कर ले कि हमारे यहाँ किस चीज की ज्यादा जरूरत है, और मुकर्रिर साहब को लिख करके दे दे कि आपको हमारे यहाँ इस चीज की कमी पाई जाती है, आपको अपनी तकरीर में सिर्फ इसी चीज के बारे में बोलना है। आप ये क्यों नहीं करते? उन्वान क्यों नहीं देते अपनी तकरीरों को, मुकर्रिरों को? और जिस दिन आपने ये करना शुरू कर दिया, अपने गिरदो पेश की कमियों को महसूस करना शुरू कर दिया और उन प्रोग्रामों में उन कमियों पर गुफ्तगू कराना शुरू कर दी, तो उन कमियों के बारे में आप कमा जान भी जाएंगे और उनसे बचने का तरीका भी आपको मिलेगा। मोहतरम सामीन किराम, हमारे यहाँ जो इस तरह के जलसे राइज हो गए जिनमें रटी रटाई तकरीरें होती हैं, जो लोग रटी तकरीरें करते हैं उनको रटने में एक तकरीर साल भर लगती है, और साल भर में उन्हें 50 प्रोग्राम करने हैं, तो एक ही तकरीर से कई साल काम चलाते हैं। आप YouTube पर जाइए, कुछ मुकर्रिर जो बहुत मशहूर हैं, जिनको आप बुलाना चाहते हैं और बुलाते हैं, उनकी 10 तकरीरें सुन लीजिए और 10 तकरीरें घूम फिर करके एक ही तकरीर होगी, और आप बुलाते हैं क्योंकि वो लच्छेदार बोलते हैं, वो रटी हुई, 1 साल मेहनत की उन्होंने। और जब वही चीजें बार बार घूम घूम कर आप सुनते रहेंगे तो फिर आपको कैसे मालूम होगा कि आपके बच्चे तरक्की कैसे करेंगे? आपको कैसे मालूम होगा कि आपका बच्चा, अक्सर हमारे बच्चे जितने भी पढ़ते हैं वो सीधा इंटर के बाद BA करने चले जाते हैं, या बहुत ज्यादा अगर तरक्की याफ्ता समझा अपने आप को तो वो BCom करने चले जाते हैं। आपके बच्चों को कैसे मालूम होगा कि यही BCom और BA जो है इनका क्रेज खत्म हो चुका है, इनकी डिमांड दुनिया से खत्म हो चुकी है, अब दुनिया जो है वो AI की तलाश में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तलाश में है, और आने वाले 50 साल इसी का दौर है। आपके बच्चे कैसे जानेंगे कि अब उन्हें BA नहीं करना है, अब उन्हें BSc नहीं करना है, बल्कि उन्हें AI की तैयारी करना है और इसके लिए अपने जी जान को लगाना है? ये कैसे जानेंगे जब आप मुक़य्यद जलसे करेंगे, बंधे हुए जलसे करेंगे? हकीकत है, कौम से हम कलाम होने के लिए, कौम से बात करने के लिए 2 जगह है हमारे पास, एक है मस्जिद, दूसरा है जलसा। मदरसा, आप कहते हैं मदरसे में कितने लोग जाते हैं? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है 2%, और कोरोना के बाद मैं कहता हूं कि 0.5% ही, सिर्फ आधा % रह गए, बस सिर्फ आधा %। और वो कितना कर लेंगे? आपको दीन की बातें आपसे डायलॉग करने, आपसे बात करने के जरिए कौन से है? मस्जिद, जहां जुमा में हमारा हर बच्चा जमा होता है। आपको मालूम है कि एक नेता एक रैली में पब्लिक लाने के लिए कितनी कोशिशें करता है? सब सियासत से ताल्लुक रखते हैं ना, सब जानते हैं कि कितनी कोशिश करता है, कितना पैसा खर्च करता है, कितनी गाड़ियां लगाता है, और तब जाकर के उसे कुछ ऑडियंस मिलती है, कुछ लोग मिलते हैं जिन्हें वो अपनी बात कह सके, सुना सके। और हमारे यहाँ जुमा के दिन हर घर से कोई न कोई मस्जिद में जरूर मौजूद होता है, हर घर तक उस नेता जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करता है इस बात के लिए कि उसका पैगाम पब्लिक तक पहुंच जाए, हमें लाखों करोड़ों खर्च करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ हमें अपनी मस्जिद में एक अच्छा समझदार आलिम रखने की जरूरत है। अगर हम अपनी मस्जिद में एक अच्छा आलिम इमाम रख लेंगे तो हमारे हर घर का हर फर्द, हर घर का एक न एक फर्द मस्जिद में जरूर जाता है, और जब जुमा के दिन इमाम खड़ा होकर के कौमी मसाइल पर गुफ्तगू करेगा, आपकी खामियों पर गुफ्तगू करेगा, आपकी तरक्की की राहों पर गुफ्तगू करेगा, तो फिर देखिए आप कैसे तरक्की नहीं करते। आपके पास तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसका आप इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। हमारे इमाम कैसे रखे जाते हैं? जो बस नमाज पढ़ा लेता उसको इमाम रख लो। इमाम सिर्फ नमाज पढ़ाने के लिए नहीं है, इमाम कौम का इमाम होता है, और वो उसी वक्त इमाम होगा जब उस लायक हो। दूसरा जरिया हमारे यहाँ जलसे होते हैं, तो जलसों को हमने बताया कैसे उन्वान मुंतखब कीजिए, आजाद कीजिए जलसों को, कैद मत कीजिए। जलसे कैद होंगे तो आपकी फिक्र कैद हो जाएगी, जलसे आजाद होंगे तो आपकी तरक्की की राहें हमवार हो जाएंगी। मोहतरम सामीन, अभी आपको बहुत उम्दा खिताबात, बहुत उम्दा हमारे असातिज़ाए किराम
इनको समाप्त करना है, इनकी बातें सुनना है। बड़ी खुशी की बात है कि आप इतनी खुश्क तकरीरें सुनकर भी बैठे हुए हैं। इससे महसूस होता है, इससे हमें यकीन होता है कि वाकई कौम अब हालात को देख करके तब्दीली चाहती है। अब कौम चाहती है कि उन्हें तरक्की की रास्तों पर लगाया जाए। इंशाअल्लाह ये हमारे उलमाए किराम जितने यहाँ पर जमा हुए हैं, ये कौम के दर्द अपने सीनों में लेकर के जमा हुए हैं और ये इसी तरह से आपके लिए जमा होते रहेंगे अगर आप इसी तरह इनकी बातें सुनते रहे। इंशाअल्लाह अगर ये काम चलता रहा तो हमारी सबकी तालीम और तरक्की का बेहतरीन इंतजाम होगा। आप किसान हैं, अब एक तालीम के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं आपके सामने से चला जाऊंगा। आप सब किसान हैं, आपने किसानी की है, बहुत सारे बुजुर्ग किसान भी हैं यहाँ पर। आपको याद होगा कि आप जब बीज बोते थे पहले तो अपना ही बीज रख लेते थे, वही दूसरी साल बो देते थे, वही तीसरी साल बो देते थे, उसी से बीजा के लिए बचा लिया, बाकी खाया पिया बेचा जरूरत के लिए। और फिर 2-3 साल बाद जब बदलना होता था तो अपने खेत का पड़ोसी को दे दिया, पड़ोसी के खेत का अपने में कर लिया, बीज बदल गया और काम चलता रहा, उपज बराबर होती रही, कमी नहीं हुई। यही होता था ना। लेकिन अब आप किसान हैं, अभी भी आप किसानी कर रहे हैं। आपको मालूम है कि बीज कितनी मर्तबा आप बो सकते हैं, आप कितनी मर्तबा वो उतनी ही उपज दे सकता है, ज्यादा से ज्यादा 3 मर्तबा। चाहे एक खेत बगल वाला बदल लीजिए, चाहे 10 खेत के बाद उसे बो दीजिए, उसमें उपज उतनी नहीं होने वाली। जानते हैं आप ये क्यों ऐसा क्या हो गया? बीज तो वही है, आप कहें खाद की वजह से, खाद की वजह से नहीं है, ये जेनेटिक तब्दीलियों की वजह से है। जो कंपनियों ने बीज पर रिसर्च करके उनमें जो जेनेटिक तब्दीलियां की हैं, उन्होंने उसकी उपज को जो ज्यादा दिनों तक होने वाली थी उसको समेट करके 3 साल में ले आए हैं। जो खेत आपका 6 बीघा पैदा करता था वो 8 बीघा पैदा कर रहा है। लेकिन उसका नुकसान ये है कि जो बीज आपका 10 साल चलता था वो सिर्फ 3 साल रह गया है। और लोग इस पर ये करेंगे। आपको ये मालूम है कि दुनिया में बीज का सबसे बड़ा प्रोडक्ट कौन बनाता है? इजराइल। सबसे ज्यादा बीज दुनिया में जो बीज पे रिसर्च करता है और जो अलग अलग तरह के ज्यादा उपज वाले बीज बनाता है वो इजराइल। इजराइल ऐसा देश है जिसे आज भी दुनिया में बहुत सारे मुल्क देश ही नहीं मानते, और उसने इतनी तरक्की की कि आज पूरी दुनिया में इजराइल के रिसर्च किए हुए बीज उपज रहे हैं। आपको मालूम है कैसा देश, जिसे बहुत सारे लोग देश का दर्जा भी नहीं देते, उसका बीज पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है। और उसने अपने इल्म की बुनियाद पर, अपनी तालीम की बुनियाद पर बीज के साथ क्या किया? बीज की जो उपज की क्षमता 10 सालों की थी उसे 3 साल में समेट दिया। आगे वो ये करेगा कि सिर्फ एक बार बीज उपजाया जा सकेगा, सिर्फ एक बार उस बीज से फायदा उठाया जा सकेगा। और आज अमेरिका ताकतवर है हथियार पेश करके, लेकिन कल इजराइल जब पूरी दुनिया की बीज इंडस्ट्री पर पूरी तरीके से कब्जा कर चुका होगा, तब वो कह देगा उसी देश को बीज मिलेगा जो मेरी फौकियत तस्लीम करेगा। अगर इजराइल ने 4 साल बीज देना बंद कर दिया, सारी दुनिया घुटनों पर आ जाएगी। और ये किसकी बुनियाद पर होगा? क्या ये उनकी इबादतों की बुनियाद पर होगा? क्या ये उनकी खिदमतों की बुनियाद पर होगा? क्या ये उनके जूतियां सीधी करने की बुनियाद पर होगा? नहीं नहीं, ये अगर होगा तो सिर्फ उनके इल्म की बुनियाद पर होगा। और हम और आप खोए हुए, हमें पढ़ना ही नहीं, हमें पढ़कर क्या करना? हम तो जन्नत चले जाएंगे ना। हम कुरान शरीफ का एक पेज उठा करके रख देंगे, जन्नत चले जाएंगे। हमें यही तो बताया जाता है, यही हम सुनने आते हैं जलसों में। हम ये सुनने नहीं आते कि हमारी कौम का मुस्तकबिल कितना तारीख हो रहा है और हमें इसे कैसे तापनाक बनाना है। मोहतरम सामीन, अपनी समातों का मिजाज बदलिए। हर मजेदार चीज जो होती है ना वो फायदेमंद नहीं होती। आप सब बाप हैं, आप सबके बेटे होंगे, आप अपने बेटे से मोहब्बत करते रहिए, सिर्फ मोहब्बत करिए। क्या वो सही रास्ते पर रहेगा? आपको उसे डांटना भी पड़ेगा।
اور آپ صرف تقریروں میں سوچتے ہیں کہ صرف یہی سنایا جائے کہ بس کیسے ہماری بخشش ہو جائے گی، کیسے ہماری مغفرت ہو جائے گی، تو آپ کی کامیابی ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ آپ کو اپنی خامیوں سے سننے کی عادت نہ ہو جائے، اپنی کمیاں سننے کی عادت نہ ہو جائے، اپنی لاپرواہیاں سننے کی عادت نہ ہو جائے، اور جب تک یہ چیزیں آپ کو سنائی نہیں جائیں گی آپ خواب غفلت میں پڑے رہیں گے، آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے، ہمارے اندر کیا خامی ہے، ہم اسے کیسے دور کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر علاج کرتا ہے نا، چیرا لگاتا ہے، آپ کو علماء کی باتیں بری لگ سکتی ہیں، لیکن ڈاکٹر آپ کا جسم چیر دیتا ہے، اس سے ناراض نہیں ہوتے۔ کیوں ناراض نہیں ہوتے؟ آپ کو یقین ہوتا ہے کہ نہیں یہ ہمارے لیے صحیح کر رہا ہے، یہ آج چیر رہا ہے لیکن کل یہی زخم صحیح ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی عالم کڑوی بات کہہ کر کے چلا جائے تو دن بھر گالیاں بکی جاتی ہیں، بلکہ کئی ہفتوں تک چائے کی دکانوں میں چوراہوں میں بیٹھ کر بکا جاتا ہے، یار وہ ایسی سی باتیں کہہ گیا، ہم لوگوں کو جاہل کہہ گیا، ہم لوگوں کو ایسا کہہ دیا، ہم لوگوں کو ایسا کہہ دیا۔ یہاں آپ کا وہ فارمولہ اپلائی نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں ہوتا؟ کیا عالم آپ کا دشمن ہے؟ کیا بتانے والے آپ کے دشمن ہیں؟ وہ بھی وہی ملا ہے، وہ بھی وہی جراح ہے، وہ بھی وہی معالج ہیں، وہ بھی وہی ڈاکٹر ہیں۔ ڈاکٹر تو آپ کے جسم کا علاج کرتا ہے اور آپ کے جسم کو چیرتا ہے۔ عالم چونکہ جسم کا معالج نہیں ہے، عالم روح کا معالج ہے، تو عالم ایسی بات کہتا ہے جس سے آپ کی روح کو تکلیف پہنچے، اور وہی تکلیف آپ کی روح کی اصلاح کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ چیزیں سننا شروع کیجیے، سنیے کہ ہماری خامیاں کیا ہیں، سنیے کہ ہماری غلطیاں کیا ہیں، سنیے کہ ہم انہیں کیسے سدھار سکتے ہیں۔ یہ علماء کرام اپنی تمام تر قربانیوں کے ساتھ تیار ہیں قوم میں تبدیلیوں کے لیے۔ یہ علماء کرام آج جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے قدموں کو چوما جائے، میں خود ان کے قدموں کو چوموں، تب بھی میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھوں گا کہ ان علماء کرام کے قدموں کو مجھے چومنے کا شرف حاصل ہوا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں قوم کا درد ہے، جن کے دلوں میں قوم کی حمیت ہے، جن کے دلوں میں قوم کی غیرت ہے، جن کے دلوں میں قوم کی بیداری کا جذبہ بنا ہے۔ محترم سامعین کرام، ہم اور آپ کو علم حاصل کرنا ہوگا۔ علم ہی آنے والی دنیا کی کامیابی کی کنجی ہے، بلکہ ہمیشہ سے ہے۔ اسی لیے تو ہمارے آقا نے فرمایا ہے، اسی لیے تو ہمارا قرآن لفظ اقرا سے نازل ہوا ہے۔ کیا اس کا پیغام سمجھ نہیں آتا؟ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کو بھی بہت سارے خطاب سماعت فرمانے ہیں، اس لیے میں بس اتنی ہی بات کے ساتھ آپ کے سامنے سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب لوگ اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ہمارے علماء کرام کی گفتگو آپ سماعت نہیں فرما لیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو علم دین سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق مرحمت فرمائے، تمام طرح کے علوم حاصل کرنے کی توفیق و رفیق مرحمت۔